ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਗਏ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ ਹੀ ਭੱਜੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਮਰਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ रल के ਇਹਨੂੰ हॉस्पिटल लेके गए, सिविल अस्पताल। मतलब मम्मी को फिर से दोबारा से कॉल 3-4 बार ट्राई की, फिर मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बताया, फिर किसी ने बताया कि रमनदीप नाम का एक लड़के ने उसको मारा है। तब मुझे याद आया कि वो वही लड़का है जो उसको 1 साल से छेड़ रहा था और उसको धमकी पे धमकी दे रहा था। मेरी बहन मुझसे बताई भी थी कि वो लड़का उसको धमकी दे रहा था इंस्टा के जरिए, ठीक है, अलग अलग आईडी बना के 0 पोस्ट था उसमें, वो उसको मतलब धमकी दे रहा था कि तू मेरे से बात कर, नहीं तो अगर बात नहीं करेगी तो या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुझे मार दूंगा और ऐसा हाल होगा कि दुनिया देखेगा। वो ਮੁੰਨਾ ਲਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। शिवानी हाँ कुछ वो ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਚਾਹੀਏ, अशोक बिहार तो उत्थे ही है। ਘਰ ਸਾਡੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ? ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਚਾਹੀਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਰਮਨਦੀਪ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ 21ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪੱਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਕੁੜੀ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ? ਚੈਟ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਚੈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵਿੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਦੀਦੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਈਕ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੀ ਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ, ਕਮਲ, ਸੋਹਿਲ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਬਲੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀਗਾ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ? ਮਾੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਆ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਗਏ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਇੰਨਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਭੱਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਮਰਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ CMC ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਮੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਆ ਉਹ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੌਣ ਆ, ਭੈਣ ਕੌਣ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰ ਜਮਾਲਪੁਰ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਨੇ ਸੱਚਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਮੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਰਾ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ 3 ਭੈਣਾਂ, 1 ਭਰਾ साडा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी यहाँ पे फिलहाल नहीं है, हॉस्पिटल में है, मैं घर पे हूँ। क्योंकि वो कई दिन से हॉस्पिटल में 21 तारीख से जब से उसके साथ ऐसा हादसा हुआ तब से वो एडमिट है। बीच में एक बार घर पे आई थी, कई मतलब गर्मी होने के कारण, हम लोग एक नॉर्मल घर में रहते हैं, उसको गर्मी होने के कारण उसको दर्द होने लगा था। फिर हम ले जाके उसको प्राइवेट में एडमिट किए, वो बेहोश हो चुकी थी। मतलब गली मोहल्ले वाले हमारे बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनके मदद से हम उसका आज इलाज करा रहे हैं। उसको पहले जब ये हादसा हुआ था मैं गांव में थी, 1 महीने से मैं गांव में थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या हुआ था क्या नहीं। मेरी मम्मी का कम से कम 20 कॉल आया था मेरे को। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं उठा नहीं पाई थी कॉल, क्योंकि मैं उस समय जॉब पे थी। जब मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया तो मैं उसका कॉल रिसीव की, क्योंकि उस समय मैं फ्री थी। जब मैं उसका कॉल रिसीव की तो वो बोली कि तेरे घर पे ऐसे ऐसे बात हुआ है। तो मैं उसी समय अपनी मम्मी को कॉल की, तो मेरी मम्मी फ़ोन नहीं ली थी, कोई मतलब आस पड़ोस से एक आंटी लिए थे फ़ोन। उन्होंने बताया किसी लड़के ने उसको मार दिया है। फिर मैं मतलब वहाँ से दौड़ी अपने मतलब मम्मी को फिर से दोबारा से कॉल 3-4 बार ट्राई की। फिर मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी ने बताया। फिर किसी ने बताया कि रमनदीप नाम का एक लड़के ने उसको मारा है।
तब मुझे याद आया कि वो वही लड़का है जो उसको 1 साल से छेड़ रहा था और उसको धमकी पे धमकी दे रहा था। मेरी बहन मुझसे बताई भी थी कि वो लड़का उसको धमकी दे रहा था इंस्टा के जरिए, ठीक है। अलग अलग आईडी बना के 0 पोस्ट था उसमें, वो उसको मतलब धमकी दे रहा था कि तू मेरे से बात कर, नहीं तो अगर बात नहीं करेगी तो या तो मैं मर जाऊंगा या तो तुझे मार दूंगा और ऐसा हाल होगा कि दुनिया देखेगा। वो कई बार वो बोली भी कि मैं डरने वाली हूँ नहीं तेरी धमकियों से। वो बोली कि मतलब अपने भाई से मैं बता दूंगी, बड़े भाई से। वो बोला मुझे किसी का डर नहीं है। हमें कोई पता नहीं था कि ये धमकी सच हो जाएगा, क्योंकि गली में चलते, मोहल्ले में चलते हर एक इंसान लड़ाई झगड़ा में धमकी देता रहता है। और वो स्कूल से आ रही थी 21 तारीख का मंगलवार वाले दिन 12:00 पे उसकी फ्रेंड थी साथ में, और वो थी उसकी फ्रेंड चली गई पीर बाबा से आगे थोड़ी सी, मतलब वो ईसा क्लिनिक के थोड़ी आगे बढ़ी। वहीं पे वो लड़का तेज हथी वो दांत लिया था शायद, ठीक है, दांत या कृपाल, इसी में से दोनों में से एक था। उसी से उसने पहले पीछे वार किया। जब वो आगे फेस की, वो तो बैग दोनों साइड में लटकाई हुई थी, जब उसने आगे को मुड़ा तो उसने यहाँ उसके फेस में मारा, यहाँ से यहाँ। मेरी बहन वहीं पे गिर गई। उसके बाद 2 लड़के वहां पे थे, सोनू और सुहेल नाम के लड़के थे। वो शिवानी का आवाज सुनते ही मतलब जान पहचान के थे, कभी देखे थे तो उन्होंने मेरे को जानते थे, उन्होंने बोला ये तो उसी की सिस्टर है। वो दौड़े दौड़े उसको बचाने लगे, जब तक उसने यहाँ भी मार दिया, ऐसे मार दिया उसको। जब तक उन्होंने उसको शिवानी के सिर पे उसने मार दिया, शिवानी बिल्कुल गिर गई, बैग भी लेते हुए बैग लटके हुए गिर गई। जब उन लड़कों ने उसको धक्का मारा तो लड़का उसका हथियार गिर गया। उन्होंने शिवानी को उठाया और शिवानी को लेकर सीधा घर आए। उस लड़के ने उन लड़कों पे भी वार किया, लेकिन वो लड़के बच गए क्योंकि 2 थे, उसको धक्का मार दिए। उसके बाद मेरी बहन घर आई। घर आने के बाद मेरी मम्मी जिस हालत में थी, पापा काम पे थे। मेरे पापा एक बहुत मजदूरी का काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं। जब मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी रोती, बगल में सामने एक दीदी है, उन्होंने उसका हेल्प किया, लेके सिविल में गए। सिविल वालों ने उसको देखते ही पट्टी पुट्टी करके आगे रेफर कर दिए। फिर दिमाग काम किसी का उस समय कर नहीं रहा था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को उतना यहाँ का पता नहीं। उन्होंने सीधा DMCH में किसी के कहने पे ले गए। DMC में ले गए तो उन्होंने 3.5 लाख का डिमांड किया। हमारे बस में इतनी नहीं है, क्योंकि हम एक गरीब इंसान है, हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। फिर वहाँ से उसको उन्होंने बोला कि या तो 3.5 लाख यहाँ पे कुछ तो इसमें बैलेंस करिएगा, तो या तो आयुष्मान कार्ड होगा तो हम उसके जरिए आपकी बेटी का थोड़ा इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो भी कार्ड नहीं था, तो जैसे तैसे करके उसको PGI ले गए। PGI में उसको ओनली उसके पैर को दबाए, देखे उसको आगे GMCH 32 सेक्टर में उसको वहाँ पे रेफर किए, चंडीगढ़। पूरी रात वहाँ पे मेरी बहन तड़पती रही, किसी ने कुछ नहीं देखा। जो DMC में उसको बड़े बड़े टाके लगे थे ब्लड रोकने के लिए, वही टाके लगे हुए थे। फिर वहाँ पे गई, पूरी रात तड़पती रही। 3:30 बजे बुधवार वाले दिन मॉर्निंग में उसका इलाज हुआ। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिए। घर पे आई, बहुत लोग देखने आने के कारण उसको चक्कर आने लगा। बहुत लोगों से हमने मदद की मांगी, कोई मदद किया, कोई नहीं किया। जिनके पास है उतना उन्होंने मदद किया। करने के बाद फिर उसको हम लोग किसी ने बताया कम से कम, फिर हम मॉडल टाउन गए थे। मॉडल टाउन जाने के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल में देखे तो अलग अलग चार्ज बताया, हमारे बस में उतना नहीं था। फिर एक छोटा सा हॉस्पिटल प्राइवेट में, यूनियन सुपर स्पेशलिटी में हम उसको दाखिला किए, डुगरी में जो है, वहाँ पे आज अभी भी उसका इलाज चल रहा है। और मैं यही आप लोग से मांग करी कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आज मेरी बहन के साथ किया कल किसी और लड़की के साथ ना करे। इस साइड का इतना मतलब गली मोहल्ला खराब है, कोई भी लड़की सेफ नहीं है। वो लोग बस यहाँ पे दहशत फैलाना चाहते हैं अपना, कि लोग डरे मेरे से, धमकी पे धमकी दिए जा रहे थे। पर जिन्होंने धमकी दिया वो लड़के आज पीछे। 1 साल से वो तंग कर रहा था। हाँ जी। 1 साल से आपने कोई पुलिस कंप्लेंट या अपने घर पे? देखिए सर, पुलिस कंप्लेंट भी हम करने जाएंगे। हम सोचे कि हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, बिहार के रहने वाले हैं, पुलिस वाले भी हमारे सुनेंगे कि नहीं। हम इतना सीरियस नहीं लिए थे इस बात को, इसलिए हमने कंप्लेन नहीं किया था। मेरी बहन ने मुझे बताया था, हमने मम्मी डैडी को, मेरी बहन ने मुझे बताया था। मैं स्कूल साइड उसको समझाई भी थी कि तेरी बहन जैसी है, उसको छेड़ना बंद कर, फालतू बोलना। तो उसने कई बार मतलब जान पहचान का ही था, ऐसा नहीं है कि वो नहीं था जान पहचान का। फिर उसने मेरे को बोला कि ठीक है आज से मैं इसको बहन मानता हूँ। हाथ जोड़ के ऐसे बोला, तू भी मेरी बहन है, वो भी मेरी बहन है। लेकिन हमें थोड़ी ना पता, उस समय मान गया था, हम भी सोचे इतना कौन सी। लेकिन फिर वो 1 साल के बाद फिर वो इस महीने के पीछे से गाँव गई थी मेरी बहन भी। हम लोग गाँव गए थे, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो
तो वहीं पे हम यहाँ पे बहुत दवाई कर ली, इलाज कराया, नहीं ठीक हो रही थी मम्मी, तो वहाँ पे जाके हम लोग ऑपरेशन कराए। मेरी बहन को भी ओवरियन सिस्ट पहले से उसके है बना हुआ, उसका भी इलाज चल रहा था। बताइए हम कहाँ से इतना इलाज कराएंगे। लड़के वालों का ये कहना है कि ये 1 साल पहले कहीं घूमने भी जाते थे, उनके पास कोई फ़ोटो है। जब हमने उनसे फ़ोटो मांगी लेकिन उन्होंने अभी फ़ोटो में दिखाई नहीं। वो कहते हैं हम ये फ़ोटो पुलिस प्रशासन को दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, वो दिखाएंगे। किशन सिंह राजपूत एक लड़का है, ठीक है, उनका जो मतलब दोस्त है, वो मेरा क्लासमेट था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। आजकल नॉर्मल है, हर एक इंसान के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ठीक है, वो भी उसका बेस्ट फ्रेंड था। मेरी मम्मी का कोई लड़का नहीं है, मैं और मेरी सिस्टर ही हैं। मेरी मम्मी को अपने मतलब मम्मी की तरह मानता था किशन जो है, ठीक है, तो उसका फ्रेंड था वो, उसका फ्रेंड था वो लोग कई बार हम लोग आसपास घूमने भी जाते थे, बर्थडे पार्टी होता था, एक दूसरे को बर्थडे पार्टी भी देते थे। वहीं पे एक नॉर्मल फोटो होगा, मैं मानती हूँ इस चीज को, बट उसका फोटो अगर गलत है तो वो फोटो लाए, सामने लाए। हाँ नॉर्मल आप मैं दोस्त हैं, नॉर्मल सामने खड़े होकर एक फोटो खिंचा सकते हैं, ये तो हर एक इंसान के साथ होता है। मतलब नॉर्मल फोटो को इशू बना रहे हैं। हाँ वो इशू बना रहे हैं, और उनका इशू बनाना है, वो लोग अलग अलग जितना मर्जी, लड़के ने खुद से मारा है, किसी ने उसको कुछ नहीं मारा है, वो बचने के लिए अपने आप को मार के वो अभी दाखिल है। उनके पास चैट भी है मोबाइल में। चैट मैं कह तो रही हूँ, वो लोग फ्रेंड थे, वो धमकियां दे रहा था, इंस्टा पे अलग अलग 0 पोस्ट से मैसेज कर रहा था। होगा चैट में, इस चीज को नहीं कह रही कि नहीं होगा चैट। वीडियो कॉलिंग भी है उनके पास। वीडियो कॉलिंग अब इसका मुझे नहीं पता, पर वीडियो कॉलिंग आपको मैं क्या कह रही हूँ, उसका फ्रेंड था, फ्रेंड में वीडियो कॉलिंग में ऐसे सब होता है। इसको इशू लेके बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आपके कहने मतलब है जो भी है वो फ्रेंड थे, एज ए फ्रेंड था। हाँ। लेकिन उसको वो इशू बना रहे हैं। हाँ वो इशू बना रहे हैं। अब आप क्या मांग करते हो? हम मांग यही करते हैं प्रशासन से कि देखिए चाहे बात कितनी भी बड़ी हो, किसी का हक नहीं है कि एक लड़की पे हाथ उठाए, और वो भी इतने बुरे तरीका से उठाए। उसकी भी बहन है, कल को उसकी बहन पे कोई, उसके मम्मी पापा को समझना चाहिए कि उसकी बहन पे कोई ऐसे हाथ उठाएगा तो कितना बुरा लगेगा। उनके तो 3-4 बच्चे हैं, मेरी मम्मी के तो हम 2 हैं आँख के तारा। आज एक मेरी छोटी बहन है, उसका इतने लाड प्यार से हम पाल पोस के बड़े किए हुए हैं, उसका इतना बुरा हाल वो लड़का किया है, पूरी दुनिया देख रही है। शिवानी अभी छोटी बहन है। मेरी छोटी है, मेरे से 3 साल छोटी है, मैं 20 साल की हूँ, अभी 17 साल की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। उसका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ा गलत है, बट वो अभी 17 साल की, मेरे से 3 साल छोटी है, अभी 10th क्लास में पढ़ती है। बताइए इस कारण उसका 10th क्लास बेकार गया। प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसा हिम्मत किसी भी लड़के को ना हो। आज तक न्यूज हर एक चीज में देखे हैं, पंजाब में कितना कुछ होता है, कोई कुछ नहीं करता है। मैं यही चाहती हूँ कि उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि मेरी बहन से, चाहे किसी भी लड़के के, चाहे कल को मेरे साथ ऐसा ना हो सके। बस। धन्यवाद।